What's going on, soldiers? It's been a while since we have done this, and I know that none of you have missed my video because I don't have any YouTube family or audience. Though I would give it to you that almost all of my views have touched 100 views, which I would believe that most of them are my friends or the people from my family or circle and few random people. And I also believe that they might have not watched my video till the end. So, for the sake of my own people, I decided to make another video. And this time I'm gonna change the topic, just like I'm gonna change the direction of my head so you could see my face more clearly. Would like to change the topic, and this time this video is gonna be about the current issues and the problems we face in our daily lives. I know I'm not genius, I'm not a consultant, and I shouldn't be giving you advice on the life issues. I know all of you are very smart and better than me, obviously, but still, I think and I believe that people learn from each other's experience. Our teachers, all the people from whom we got to learn anything, they were humans, just like me, just like you guys. I learn from you guys, you learn from me. But this is not just learning, it's a discussion. I call it a discussion because people learn more through discussion than through lectures. This is what I believe because I never learned anything through lectures. I always learn through discussions. So, without wasting any time, let's get into this. I don't have any list of topics which I'm gonna discuss, but we can make a list right now actually. So the first thing is, and the most important thing, which I believe that almost all of us are struggling with, is social media addiction. That what social media is doing to us. Of course, none of us have the actual answer of this question, but there are effects of this problem that we all are facing, and we don't know. We cannot point out, okay, the social media is doing no good to me, but it's also damaging me, but I don't know how it is damaging me. Maybe the least we could say is like I'm spending my time, like I'm spending, if I talk about myself, the last day I spent on my phone for like 8 hours. Okay, but this is not just this isn't the daily thing for me, because today my screen time is just 1.5 hour, and in those 1.5 hour I I have spoken with my family for like 50 minutes. So my screen time is actually below 3. So yes, the thing I was talking about, the least we could think of is that we are spending too much time on social media, and maybe we could use that time to do something better, do something productive, which could actually help us get better and go far in our lives. But actually, this is not the case. It's not like, okay, social media is off, productivity is on. It's not. It doesn't work like that. There is a process. I've got to learn about this process thing from my friend today. His name is Winger. He gave me a very good lesson about this. He said that we were talking about repentance. I thought, okay, what is repentance? It's not, he said, it's not just an event, it's a process. It's not like you did something wrong and you said, oh man, I did something wrong, I shouldn't have done that. This cannot be called as repentance. Repentance is actually doing, putting your all energy to not to do that again. This is repentance, and trying your best that this event does not occur in near future, or the rest of your life, of course. So let's not get away from the topic. So the social media. So the social media. Let's switch to my native language actually, because I'm not so good in English, and of course we cannot be creative in other foreign languages.
सोशल मीडिया से एक्चुअली में हो क्या रहा है? सोशल मीडिया पे एक तो ये आपके माइंड को शेप कर रहा है, ये आपके माइंड को रीवायर कर रहा है एक्चुअली में। आप जो कंटेंट देख रहे हो इसका आप पे इनडायरेक्ट इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है ये अब मुझे तो इसकी एक्चुअल डिटेल नहीं पता, बट ऑफ कोर्स जो इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट रील्स, जो रील्स हम देखते हैं वो बहुत ही स्पीड में आ रही हैं, डिफरेंट तरह का कंटेंट है, डिफरेंट तरह का म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। आपको पता है आपके माइंड का के जो सिग्नल्स हैं उन पे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो जैसे ही म्यूज़िक चेंज हो रहा है, आप डोपामिन एक्चुअली में रिलीज़ हो रहा है, तो इसको हम इन शॉर्ट इस तरह कह सकते हैं कि इसका हार्मोन इम्बैलेंस, इससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और हमारा जो डोपामिन का रिलीज़ है हमारे माइंड से वो बहुत ही इसने इजी बना दिया, जो कि एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक्चुअल डोपामिन कैसे रिलीज़ हो सकता है हमारी बॉडी में, ये आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। थ्रू वर्कआउट, एक्सरसाइज के थ्रू आप एक्चुअल डोपामिन हासिल कर सकते हो, बाय ट्रैवल करके, या फिर और बहुत सारी चीज़ें, कोई टास्क कंप्लीट करके भी डोपामिन मिल सकता है, बट और जस्ट रील्स देखने से भी डोपामिन मिल सकता है। तो ऑफ कोर्स इसका कोई तो इफेक्ट होगा। तो अब सोशल मीडिया में जो मेन जो इस वीडियो का टॉपिक था जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो था यूट्यूब। अब यूट्यूब बुरी चीज़ नहीं है, हम यूट्यूब पे बहुत सारा अच्छा मटेरियल पढ़ा है, हम उससे बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम जस्ट करना टॉक अबाउट पाकिस्तान। मैं अपने लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं की बात करूँगा। आप देखें इस टाइम आपके टॉप 10 यूट्यूबर्स कौन से हैं जिनका कंटेंट सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है पाकिस्तान में। तो ऑफ कोर्स अगर मुझे एग्जैक्ट लिस्ट तो नहीं पता, ना मुझे उस लिस्ट को देखने की ज़रूरत है, पर आप और मैं सभी जानते हैं कि ये डकी, सादुर रहमान और सिस्ट्रोलॉजी और इस तरह के और डेली व्लॉगर्स, इसको मैं डेली व्लॉगर्स की कैटेगरी में डाल देता हूँ कि डेली व्लॉगर्स का कंटेंट सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा कंटेंट क्या कंज्यूम किया जाता है? पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिक्स का कंटेंट जिसमें इमरान रियाज और बहुत सारे और यूट्यूबर और मेन ब्रॉडकास्टिंग चैनल जैसे ARY जियो, इनके टॉक शोज वगैरह होंगे जो सबसे ज़्यादा देखे जाते होंगे। और देन उसके बाद आई थिंक कोई रैंडम ऐसे कार्टून्स या थिंग्स लाइक दैट, और सबसे आखिर में कौन से यूट्यूबर हैं जैसे कि जो पॉडकास्ट हैं, UN पॉडकास्ट और फैसल बड़ाइच है, देखो सुनो जानो, और इस तरह के जो, मैं हकीकत टीवी को तो इस लिस्ट में नहीं रखूँगा क्योंकि हकीकत टीवी का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बट उसकी चीज़ें ज़्यादा सुपरफिशियल साउंड करती हैं। आई डोंट नो, मे बी उसका मैंने कभी उसको इतना फॉलो नहीं किया, बट दे आर अदर पेरेड चैनल्स दैट वी वॉच। तो अभी ये देखें, जो लोग सबसे ज़्यादा टाइम ये डेली व्लॉगिंग पे स्पेंड कर रहे हैं, उसमें से क्या लेके जा रहे हैं? उसमें से क्या मैसेज मिल रहा है? नथिंग। सिर्फ टाइम का वेस्ट हो रहा है, उन लोगों के पैसे बन रहे हैं, उन लोगों की लाइफ बेटर हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और सिर्फ वक्त की बात नहीं है, आप खुद को भी वेस्ट कर रहे हैं, अपने माइंड को वेस्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे बिलीव्स जो हैं, जो अपनी लाइफ को लेके एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किस तरह अपनी लाइफ को देखना चाहते हो, अपनी लाइफ को किस तरह शेप कर रहे हो अपने माइंड में, वो इस चीज़ का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। आप चाहते हो कि आपको लगता है कि हाँ यार उनकी लाइफ बड़ी चिल है, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बस हमारी लाइफ ही ऐसी है, तो इसका आप पे इफ़ेक्ट है और आप इसको फील भी कर रहे होगे। और दूसरी चीज़ जो सोशल मीडिया में जैसे आप दूसरे लोगों के पिक्चर्स देखते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी विजिटेड अ प्लेस, कोई फ्रांस गया, उसने आईफल टावर के साथ पिक्चर लगा दी, या कोई ऐसी जगह पे गया, या फिर किसी ने अपनी अचीवमेंट पोस्ट कर दी, तो आप जब उसे देखते हो तो आपको लगता है कि यार सब लोगों की लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं चल रहा। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। वो आईफल टावर गया है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आईफल टावर गया है तो आई नो कि वो कैसे आईफल टावर गया है। वो ट्रेन में गया होगा, और इफ़ आई बिलीव, मैं अभी तक पेरिस नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार जब तक मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं होगी मैं यहाँ की किसी भी प्लेस को एंजॉय नहीं कर सकता ठीक से।
वो यहाँ से ट्रेन में वहाँ गया होगा, वहाँ पे आई डोंट नो कि उसने स्टे के लिए रूम भी बुक किया होगा या नहीं, तो वहाँ पे रहा होगा। अगर रूम बुक किया होगा तो उसके माइंड में ये होगा कि यार हाँ, मैं एक दिन में मैक्सिमम प्लेसेस घूम के और वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करके वापस आ जाऊँ। तो यही उसके माइंड में होता है। और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि जब वो इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करके लोगों से वैलिडेशन ले लेता है कि हाँ यार, आप कमाल कर रहे हो यार, आप अपनी लाइफ में बहुत सही जा रहे हो। तो यही उसकी ट्रू हैप्पीनेस है। उसकी ट्रू हैप्पीनेस आईफल टावर को देखने में छुपी नहीं थी, उसकी ट्रू हैप्पीनेस वहाँ जाकर फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में छुपी थी, जो कि उसे लगता है कि यार ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि हाँ, लोगों को पता चल गया, मेरी ठाट बाट, मेरी बात बन गई है, बस ठीक है। बट एक्चुअल में किसी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस या फिर किसी मॉन्यूमेंट या किसी फेमस प्लेस को विजिट करना कैसा होता है कि आप खुद जा रहे हो, खुद एक्सपीरियंस करने के लिए कि हाँ यार, वो एक यूनिक स्ट्रक्चर है। आई डोंट नो कि ऐसा स्ट्रक्चर दोबारा बनाया जा सकता है या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि एफिल टावर फेमस क्यों है। तो मैं देखना चाहता हूँ उसे, लोगों के बारे लोगों से बहुत कुछ सुना है उसके बारे में, तो मैं इस प्लेस को विजिट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे यूरोप में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मुझे लगता है कि हाँ, मैं बहुत मुझे शौक है कि यार मैं उस जगह पर जाऊँ। लेकिन एक जो प्लेस है इस दुनिया में जो मैं सोचता हूँ कि यार हाँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो वो इजिप्ट है। मैं कायरो जाना चाहता हूँ, मैं पिरामिड्स और उनके जो म्यूज़ियम है, मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। क्योंकि बिकॉज आई बिलीव कि वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ें डिस्कवर की हैं जो आज से 4-5 हज़ार पहले ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ पे मम्मीज़ पड़ी हैं, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। सी, इमेजिन करो जैसे मैं यहाँ पर अभी ज़िंदा हूँ, मेरी एक पूरी लाइफ है यहाँ पे, मैं मर जाता हूँ और देन मेरी इसके बाद में लाइफ कैसी होगी, ये उससे 4-5 सदियों बाद जो लोग आएंगे उन्हें मेरे बारे में पता भी नहीं होगा कि मैं कौन था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी डेड बॉडी कहीं से मिल जाती है, मेरी मम्मी कहीं से मिल जाती है, तो वो उसको म्यूज़ियम में लगा देंगे। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ा आई डोंट नो हाउ टू से दिस, लेकिन ये मेरे लिए चीज़ एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि यार एक बंदा मर चुका था, उसकी लाइफ एंड हो चुकी थी, देन उसको फिर उन्होंने निकाला है, उसको शेल्फ में लगा। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मम्मीज, उनके जो आई डोंट नो आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो उनका चीज़ें थी, उनके इस्तेमाल की चीज़ें थी, और फिर उनके रहने की जगह, फिर पिरामिड इटसेल्फ बहुत बड़ा वंडर है, आई थिंक स्टिल इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आई वुड क्लिक सम पिक्चर्स एंड माई पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया फॉर वैलिडेशन बिकॉज आई एम ह्यूमन, क्योंकि मुझे भी वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि मुझे भी कभी कभी ऐसा डोपामाइन अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट, बट या आई विल, इट्स बेस्ट आई शुड ट्राई टू अवॉइड इट, बट आई विल डू देयर आफ्टर मैं अपना उस चीज़ को थॉरली एक्सपीरियंस करके उसका पूरा मज़ा लेके देन मैं उसको व्हेन आई विल कम बैक देन आई माइट पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया कि मैंने हाँ पहले उस चीज़ को पूरी तरह एंजॉय भी कर लिया, देन मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर दिया। बट इट्स नॉट नेसेसरी टू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया। अगर आप खुद की एक आर्काइव्स बनाना चाहते हो, खुद की मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, बट मेक श्योर कि दूसरे लोग उससे हर चीज़ से देखें कि हाँ यार, इसका अगर कोई और बंदा देखेगा तो शायद उसके दिल में ऐसा ख्याल ना आए कि यार हाँ, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। बट फॉर दोज पीपल, उनके लिए भी यही मैसेज है कि यार आप भी हर चीज़ को इस वे से देखना छोड़ दो कि हाँ अगले की लाइफ सब अच्छा है और आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है, बल्कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो कि उसकी लाइफ में अगर अच्छा है, जो कि रियलिटी में अच्छा है या नहीं, ये सोचो कि वो अच्छा क्यों है। अगर कोई शख्स किसी फॉरेन कंट्री में बैठा है या किसी पोजीशन पर जा पहुंच चुका है, तो उसके पीछे भी एक स्ट्रगल होगी, एक पूरा प्रोसेस होगा। आप उस प्रोसेस को स्टडी क्यों नहीं करते? जो पैथ उसने फॉलो किया, आप उस पैथ को स्टडी क्यों नहीं करते कि हाँ यार, इसके लिए चीज़ें वर्कआउट करनी, इस पैथ को फॉलो करके, तो अगर मैं ये पैथ फॉलो करूँगा तो शायद मेरे लिए भी ये चीज़ें वर्कआउट कर जाएँ। तो आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। बट सो वी स्टार्टेड विद द यूट्यूब चैनल्स, फेमस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉगर्स हैं, तो प्लीज़ स्टॉप इट। ये आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, वो कुछ भी नहीं करते, ये ऐसे सुबह उठते हैं, अपना फ़ोन पकड़ा एंड देन स्टार्ट ओके, हे व्हाट्स गोइंग ऑन सोल्जर, दिस इज माय लाइफ, आई वर्क आउट विद माय, दैट्स इट, दिस इज बुलशिट।
और दूसरी तरफ अगर मैं डकी भाई या फिर क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी आई थिंक, बिकॉज मेरे लिए मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो सिस्टर्स हैं, वो आई थिंक जो पाकिस्तान की औरतें हैं उनकी मेंटल स्टेट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मर्दों से ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में औरतें एक्चुअली में बहुत सफ़र करती हैं, ये रियलिटी है, जो कि एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए। आई नो यू गाइस माइट डिसएग्री, पर आप खुद अपने घरों में देख लें कि आप अपनी घर की औरतों के साथ कितना इंसाफ करते हो, आप अपनी माँ की, अपनी बहन की कामों में कितनी हेल्प करते हो, आपने कितनी दफ़ा उन्हें सब्ज़ी काट के दी है कि आप खाना बना लें, मैं सब्ज़ी काट देता हूँ, या फिर बर्तन धोने में, या फिर आपने कभी अपने खाने अपनी प्लेट में जिसमें आपने खाना खाया उसको जाके आपने कितनी दफ़ा धो के वापस अपनी जगह पे रखा है, या फिर आपने अपने रूम की सफाई कितनी दफ़ा की है, या जब आप उठे हो आपने अपना बिस्तर कितनी दफ़ा बनाया है। आप इन चीज़ों को गौर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपने घर की औरतों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। आपको भले लगेगा कि यार यार मैंने तो कभी उनके साथ बदतमीज़ी नहीं की, बट वो चीज़ अलग है, अच्छा बिहेवियर एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके एक्शंस भी बहुत मैटर करते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा गौर करें। और दूसरी चीज़, हाँ, घर की औरतों को मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि सिस्ट्रोलॉजी बहुत फॉलो करती हैं, और सिस्ट्रोलॉजी ऑब्वियसली उनके कंटेंट से मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक इस चैनल पे तो टोटली बैन होना चाहिए। और आई नो मैं मेरे जानने वाले कुछ हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी, वो भी एस्ट्रोलॉजी को बड़ा फॉलो करते थे। मैंने कहा प्लीज़ स्टॉप इट, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये था एस्ट्रोलॉजी की बात। अब एस्ट्रोलॉजी को आप कंपेयर कर लो देखो सुनो जानो के साथ, फैसल बड़ाइश के साथ आप कंपेयर कर लो। मैं पॉडकास्ट की तो बात ही नहीं करता। पॉडकास्ट तो चलो उनका, आपने किसी गेस्ट को बुलाया, आपने उनसे कम्युनिकेशन कर लिया, तो आपने एक चीज़, एक आइडिया पे आपने डिस्कशन कर लिया, लेकिन आपको उसकी इतनी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर आपने कोई नॉलेज, उन्होंने हाँ पहले अपनी बुक्स पढ़ी होंगी, और वो ऑफ कोर्स उन्होंने पूरा वो एक चीज़ को स्टोरी की शक्ल दी, फिर क्वेश्चंस क्रिएट किए, कंटेंट तो ऑफ कोर्स वो भी है, उस पर भी टाइम लगता है, पर उस पर उतनी एफर्ट नहीं लगती जितनी इस तरह के कंटेंट पे लगती है, जैसा देखो सुनो जानो का जो है क्रिएटर फैसल बड़ाई जैसा कंटेंट प्रोड्यूस करता है, और सबसे ज़्यादा कम एप्रिसिएशन उसे ही मिलती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, बट दिस गाय इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और उसको उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा जितना उसको मिलना चाहिए। तो फैसल बड़ा इस पे 2.61 मिलियन व्यूज़ हैं, बट इसके सॉरी सब्सक्राइबर्स हैं, बट उसके इतने अच्छे व्यूज़ नहीं हैं। उसके व्यूज़ हार्डली किसी वीडियो के 100K 200K हो 500K टच करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा, और हमें शॉर्ट वीडियोस देखने का बस शौक है, रील्स या फिर बहुत कम वो जो 2-4 मिनट की हो वो हम देख सकें, लेकिन हम डेली व्लॉग पूरा देखते हैं। तो लेकिन मैं फैसल वड़ाइश को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए भी करता हूँ कि उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की। मेरे व्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं, बट वो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करे जा रहा है। आई थिंक उसके 2-3 और चैनल्स हैं, उन पर भी वो अपनी ओपिनियन शेयर करता है, तो दिस गाय इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो ये थी यूट्यूबर्स के हवाले से बात। दूसरी जो मेन टॉपिक है, आई थिंक कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट इसको थोड़ा सा मैं टच करना चाहूँगा, वो है रिलीजन। और उसके बाद चौथा टॉपिक है वो हमारी फूड या हमारी हेल्थ या हमारी डाइट है। रिलीजन के बारे में जब बात होती है ना, तो प्लीज़ आप जो पाकिस्तान में पैदा हो गए हो एक इस्लामिक कंट्री में, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हो गए हो। बट फिर दूसरी तरफ इस चीज़ पे भी थोड़ा गौर करना कि आप बाई चांस मुसलमान हुए थे, आप बाई चॉइस मुसलमान नहीं होते। बाई चॉइस आप मुसलमान तब हो गए जब आप ने रिलीजन को पूरा स्टडी किया, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पूरा समझा, फिर उस चीज़ जो और बहुत सारे इश्यूज़ थे हमारे रिलीजन में, इश्यूज़ बाई मीन के जैसे होते हैं कि सूद का मसला या इस तरह के जो भी हमारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उन चीज़ों के आपने पर्सनली कितना स्टडी किया। तो क्या आपका दिन सिर्फ नमाज रोज़ा और हज ज़कात तक तो नहीं महदूद रह गया? क्योंकि रिलीजन मेरे करीब एक पॉलिटिकल चीज़ है, एक सोशल सिस्टम है पूरा। पॉलिटिकल मैंने इसलिए बोला क्योंकि
अगर पोलिटिकल पाकिस्तान को मैं कह देता हूँ कि पूरे एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे मिडल ईस्ट में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? जो इसराइल में हो रहा है, जो ईरान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं। तो दैट्स वाई आई से कि ये पॉलिटिकल है। इसराइल कौन है? वो ज्यूज़ हैं, वो यहूदी हैं, वो जो कर रहे हैं वो अपने रिलीजन को यूज़ करके कर रहे हैं, जो हमने हिस्ट्री में रोमन्स के साथ, या आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इतना अच्छा हिस्ट्री को, जो क्रुसेड्स, जो सलीबी जंगें हुई थी, वो भी रिलीजन की बेस पे हुई थी। तो इसलिए मैंने इसको पॉलिटिकल बोला। और दूसरा चीज़ मैंने बोली कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जस्ट फ्यू प्रैक्टिसेस। आप नमाज पढ़ ली, मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, बट इन रियलिटी यू आर एन ऑफुल पर्सन टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। आप अपने फ्रेंड्स में आपको अच्छा नहीं समझा जाता, आप उनसे बात सही से नहीं करते, आपका अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, बट आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, आप रोज़े नहीं छोड़ते, और ज़कात की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में ज़कात को, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट कोई इसकी तरफ बात नहीं करता। वो कहते हैं हाँ वो बैंक हमारी ज़कात काट लेता है, या फिर हम टैक्सेस की शक्ल में हमारी ज़कात चलेगी, बट एक्चुअल में ज़कात ऐसी नहीं है। ज़कात मुझे नहीं पता, मैं इसकी रियलिटी कोई और हो सकती है, बट यू योर सेल्फ नो, आपका दिल को पता है कि ज़कात एक्चुअल में कैसे दी जाती है और क्या हम वो दे रही हैं या नहीं। तो मैं बस रिलीजन को पर इतनी बात करूँगा कि थोड़ा चीज़ों को जूम आउट करके देखें कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप बाई चांस मुसलमान हुए थे, और जो आप प्रैक्टिसेस आपको बताएंगी आपने उसी को फॉलो कर लिया, आपने कुरान मजीद को सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ लिया, आपने हलाल चीज़ों को सिर्फ ये समझ के खा रहे हैं कि यार ये इस पर हलाल की स्टैंप लगी हुई है, बट एक्चुअल में वो किस तरह प्रोसेस हुई थी, या फिर चीज़ों को हलाल हराम किस बेसिस पे डिक्लेयर किया गया था कि ये क्यों हलाल है, ये क्यों हराम है, आपने उसके पीछे जो लॉजिक थी, जो साइंटिफिक रीज़न थी, आपने उसको कितना स्टडी किया। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब जो चौथी चीज़ है वो हमारी फूड या हमारी डाइट या हमारी हेल्थ पे है। देखें पाकिस्तान में जो है कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है, लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी डिटीरियोरेट हो रही है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। लोगों का फोकस स्पैन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। पहली चीज़ हमारे पास सिस्टम नहीं है, दूसरी चीज़ हमारे पास हम ऐसी डाइट अपनी बॉडी को नहीं दे रहे जो कि हमें हेल्प कर सके, हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना तो दूर की बात है, वो तो ऑफ कोर्स एक प्रोसेस से आती है, लेकिन आपकी डाइट से वो कम ज़रूर हो सकती है। तो अब इसको थोड़ा और मज़ीद इसमें डिटेल में मैं यही बात करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो थी यहाँ के लोगों की डाइट। ये लोग सब कुछ खा रहे हैं, और सब कुछ से मेरी मुराद ये नहीं है कि जो मतलब ये लिहाज नहीं कर रहे कि बस छिपकलियाँ, मेंढक, कुत्ते, बिल्लियाँ सब कुछ खा रहे हैं, ऐसी मेरी मुराद नहीं है। सब कुछ से मुराद ये लोग वेजिटेबल्स खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलड, ओ सॉरी लीफी प्लांट्स, और आई डोंट नो, सैलड खाते हैं बहुत ज़्यादा। सैलड में ये कॉर्न खाते हैं, पापरिका खाते हैं, पापरिका जो बेल पेपर होती है, और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने मिक्स किया हुआ है ताकि उनको बैलेंस न्यूट्रिशन मिले। और फिर ये भी देखते हैं कि हमारा डेली का प्रोटीन इंटेक कैसा है, और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स और इस तरह की सारी चीज़ें ये अपनी बॉडी को फीड करते हैं। और फिर जो शुगर है उसका इंटेक भी ये कोशिश करते हैं कि मिनिमम रखा जाए। अब ये देखें, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सनल, ये इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है कि हर शख्स ने अपने लिए एक कोई ख़ास प्लान रखा हुआ है, नहीं। इनका कल्चर ही ऐसा है, ये इनकी कुजीन कह लें कि ये इनके पास कुजीन ही है। ये उबले हुए आलू, फिश और हल्का सा फ्राई किया हुआ चिकन, इस तरह की चीज़ें, ये इनकी कुजीन है। इनकी कुजीन्स में इतना टेस्ट नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, हमारे पास जस्ट टेस्ट ही है। हमारी जो खाने हैं उनमें कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करो आलू गोश्त की, मैं बात कर लेता हूँ, या कढ़ाई की बात कर लूँ, कढ़ाई में आपको क्या मिल रहा है? फॉर एग्जांपल आपने 1 किलो कढ़ाई बनाई है, 2 लोगों ने फॉर एग्जांपल वो खाई है। कढ़ाई में से सिर्फ आपको फैट थी उसमें, और चिकन से आपको प्रोटीन मिला। बाकी जो इतनी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड की हैं आपने,
फिर आपने जो प्याज को पहले ब्राउन किया है, फिर ब्राउन करके आपने उसके आधे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी उसको आपने ख़त्म कर दिया। सेम चीज़ आपने टोमेटोज़ के साथ किया, बट टोमेटोज़ का फाइबर तो लूज़ हो गया, टोमेटो का फाइबर ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न्यूट्रिशन बच जाती, लेकिन वो इतनी यूज़फुल नहीं है क्योंकि आपने उस पर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो आपको उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हम जितने भी खाने बनाते हैं हम करी में बनाते हैं और हमारा मेन फोकस होता है टेस्ट पे। हमने कभी नहीं सोचा कि यार आलू मटर गोश्त बने, हाँ ठीक है ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है यार, एक मतलब डिफरेंट चीज़ें मिक्स हुई हैं, इससे हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी। हम हमारा होता है कि यार इसका टेस्ट कैसा है, सही। तो ये इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और फिट नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो इस चीज़ पे यार बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों हमारे खाने सिर्फ टेस्ट सेंट्रिक हैं, न्यूट्रिशन सेंट्रिक क्यों नहीं है। और इसी वजह से आपको इसके रिजल्ट भी आपके सामने हैं। हमारे यहाँ हार्ट के इशूज़ कितने हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान के लोगों की बहुत ज़्यादा कम है, 50-60 साल यहाँ तक। और हमारे नौजवानों में कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये चीज़ें अलार्मिंग हैं। और फिर ये चीज़ें बिला वजह नहीं हैं, इनके पीछे एक प्रॉपर रीज़न है, प्रॉपर रॉन्ग डूइंग्स हैं जो हमें इस पॉइंट तक ले आई हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। एंड देन एक बात मैं कहने लगा था, मेरे माइंड से थोड़ी स्लिप हो गई, पर आई डोंट नो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा जो कंटेंट है वो पहले से ऑर्गेनाइज करूँ, मुझे पता हो मैंने किन चीज़ों पे बात करनी, ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आपने टाइम देना होता है डेली व्लॉगर्स को, तो आपने उनका कंटेंट भी देखना होता है जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, फिर क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट की हैं, उनके सॉल्यूशंस को मैंने इतना अच्छी तरह से हाईलाइट नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि जो सोशल मीडिया टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया उस पर थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगा, और फिर रिलीजन पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। हमारे यहाँ लोग फतवे बहुत जल्दी देना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर अगर पर्सनल ख्वाहिश पूछी जाए कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि लाइफ में मैं टीचर बनना चाहूँगा। दो कि मुझ में कोई ऐसी एबिलिटीज़ नहीं है, बट आई बिलीव कि ये जो पोजीशन है एक टीचर की और एक जो हमारा सोसाइटी का मजहबी, आई डोंट नो क्या, मस्जिद का जो इमाम होता है, ये दोनों पोजीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन मस्जिद के इमाम की है, क्योंकि वहाँ देखो लोग दिन में 5 बार इकट्ठे हो रहे हैं और जुम्मे में एक बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन हमारा इमाम क्या कर रहा है, वही रटी रटाई 2-4 स्पीच, 5-10 स्पीच और हालात वाक़यात जो भी हुए थे अंबिया की लाइफ में, उनको डिस्कस कर रहा है, बट एक्चुअल मैसेज नहीं दे रहा। सोसाइटी के करंट इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहा कि लोग अपनी पर्सनल मैटर्स में कैसे हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ वो कैसे हैं, अपनी डेली डीलिंग्स में वो कैसे हैं। तो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, उनके सॉल्यूशंस को बताएं, और इस तरह ये चीज़ होनी चाहिए। तो और फिर जो फूड है, फूड ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब की फैमिली में हमारे जो एल्डर्स हैं, हम हमारे पेरेंट्स हों या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों या फिर सिबलिंग्स में, अल्लाह ना करे किसी ना किसी को थोड़ा बहुत हार्ट का इशू या फिर डायबिटीज़ का इशू होता है, तो उस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। बट एक टिप मैं ये दूंगा कि कभी भी मेडिसिन पे रिलाई ना करें, आप थोड़ा इस पर सर्च करें। मेडिसिन ये एक जो फार्मास्यूटिकल पूरी इंडस्ट्री है, ये एक बिजनेस है, ये कभी भी आपको क्योर करने के लिए मेडिसिन बनाई नहीं गई। ये सिर्फ आपको टेम्प्रेरी रिलीफ देती हैं, देन आपको नेक्स्ट डे फिर इसको कंज्यूम करना पड़ता है वही रिलीफ दोबारा लेने के लिए। ये आपको क्योर नहीं कर सकती। क्योर आपको आपकी अपनी रूटीन, अपनी डाइटरी हैबिट्स और आपकी एक्सरसाइज, ये चीज़ें आपको परमानेंटली क्योर कर सकती हैं। मेडिसिन कभी भी आपको क्योर नहीं कर सकती। तो क्योंकि जर्मनी में अगर मैं बात करूँ तो मेडिसिन ये तब देते हैं जब आप इन्हें लग रहा हो कि हाँ ये
बंदा नहीं ठीक हो रहा, फॉर एग्जांपल अगर मैं फीवर की बात करूँ या फ्लू की बात करूँ, ये कभी भी मेडिसिन नहीं देते, ये कहते हैं कि आप रेस्ट करें। लेकिन हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल हल्का सा बुखार क्यों ना हो, बहुत सारी मेडिसिन आपको दे देता है। तो लेकिन उस मेडिसिन से आपको और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो लीवर पे अटैक कर सकती हैं, किडनीज़ पे तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है उसका। फिर वो केमिकल्स आपकी बॉडी में रहते हैं, बुखार ख़त्म होने के बाद भी आप 1-2 दिन तक प्रॉपर फिट नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आपकी बॉडी का यूरिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। और फिर हमारी जो एक्सरसाइज की हैबिट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज की हैबिट बना लें तो हमारे आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे, हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं। और जब मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जिम में जाएं और जिम में जाके एक एक दो दो घंटे तक इंटेंसिव ट्रेनिंग करें। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको जस्ट 15 से 20 मिनट रोज़ देना है। जितना टाइम आप नमाज को देते हो, इसको भी छोटी नमाज बनाएं। 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग करें, और थोड़ा सा अगर रनिंग कर सकते हैं तो आप रनिंग करें। आई वुड सजेस्ट यंग पीपल, और जो एल्डर्स हैं वो एटलीस्ट वॉक करें, आधा घंटा वॉक करें, उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करें। और थोड़े बहुत अगर वो वेट लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे जो मसल्स हैं ये वैसे ही वेट बेयर करने के लिए या फिर मूवमेंट के लिए बने हैं। आप जब मूवमेंट्स नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स हमारा जो मसल मास है वो लूज़ होगा और फैट बढ़ती जाएगी। और जो औरतों का है, औरतों अभी अभी देखें, हमारी औरतों में कैल्शियम के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, और मसल्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मसल वीकनेसेस और इस तरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ की औरतों में ये मसले मसाइल नहीं है, हमारी औरतों में बहुत ज़्यादा। अब उसके पीछे भी रीजंस हैं, अगर मैं रीजंस एक्सप्लेन करने जाऊँ स्टार्ट करूँगा तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बट ये एक जस्ट वीडियो थी जिसमें मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहता था, सो आई डिड। आई होप यू गाइज हैव लर्न फ्रॉम दैट। और ये वीडियो मेरी ओवरऑल ऑडियंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे अपने लोगों के लिए है जो मेरे करीबी हैं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को ठीक करने का मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ। लेकिन जो मेरे करीबी लोग हैं, दे आर डियर टू मी, और मैं उनको लेकर कंसर्न हूँ। और मैं चाहूँगा कि वो एक हेल्दी लाइफ गुजारें, एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारें और लाइफ में आगे बढ़ें। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर बेयरिंग मी फॉर दिस, आई गेस 25 मिनट्स और 30 मिनट्स, मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इतना मुझे पता। मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया, और बाकी हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड ciao, see you guys.